मोक्ष मार्ग सूत्र। मग्गो मग्गफलं तिय द्विहं जिन शासने समखादम मग्गो खलु सम्मतम मग्गफलं होयि निर्वाणम दंसन नान चरित्राणि मूकमग्गोद्दिशे विदव्वाणि साधु हिदं भणिदं ते हिंदु बंधो व मुखो वा अण्णानादो नाणी जदि मन्नदि शुद्ध संपोगादो हवदिति दुःख मुखम परसमयदो हवदि जीवो वदसमिति गुत्यो शीलतवं जिनवरे हि पन्नत्तम कुवन्तो व्यभवो अन्नानि मिच्छदुत्थीदु निश्चय व्यवहार सर्वं जोरणतयं न जानैसो जे कीरयितं मिच्छारुवं सवं जिनुद्दिष्टं सद्दहदिय पत्तेदिय रोचेदियतः पुनो यफासेदि तम्मं भोग निमित्तं न दुशोकं अक्षय निमित्तं सुह परिणामो पुण्यं असुहो पावत्ति भणीय मन्नेषु परिणामो सन्नगतो दुःखक्षय कारणं समये पुण्यं पिजो समिच्छति संसारो तेन ईदिहो होति पुण्यं सुगैहेतुं पुण्यक्षयेणैव निर्वाणम् कम्ममसुहं कुशीलं सुहकम्मं चाविजानव सुशीलं कहतं होदि सुशीलं जं संसारं पवेशेदि सोवण्यंपि नियलं बन्धति कालायसंपि च पुरुषं बन्धति एवं जीवं सुहमसुहं वा कदं कम्मं तम्मादु कुशिलेहिं य रायं मा पुनः माव संसग्गं साहीनो हि विनाशो कुशील संसग्गरायेण वरं वयतवे हि सग्गो मा दुःखं हो निरै यरेहिं छायातवठ्ठियाणं परिवालं ताणगुरुधेयं खयरा मरणमुय करंजलि मालाहिं च सन्तुया विउला चक्रहरराय लच्छी लभ्भै बोहीण भवनुवा तत्तठिचा जहाठानं जखा आउक्कये चिया उवेन्ति मानसं जोनिं सेदसंगे भिजायये भोचा मानुष्ये भूये अपडिरुवे अहावयं पुवं विशुद्ध सद्धं मे केवलं बोहि बुद्धिया चौरंगं दुल्लहं मत्ता संयमं परिवज्जिया तव साधुयकं से सिद्धे हवै साहसे। Samana Suttam, Chapter 16, Percepts on the Path of Liberation, Moksha Marga Sutra, Gatha 192. The path and the results of following the path, these two things have been proclaimed in the discipline preached by the Jinas. Really, right faith is the path and liberation is the result. Gatha 193. The faith, the knowledge and the conduct
together constitute the path of liberation. This is the path to be followed. The saints have said that if it is followed in the right way, it will lead to liberation, and otherwise it will lead to bondage. Gatha 194. If a wise person ignorantly considers that by doing pure, that is religious performance, he will be free from sorrow, then he is the follower of an alien view, that is the wrong faith. Gatha 195. An abhavya jiva, that is a soul inherently incapable of attaining liberation, even if he observes the 5 vows, the 5 types of vigilance, the 3-fold of self-control, the code of morality, and the various modes of austerities as laid down by the Jinnah, lacks right understanding and possesses wrong faith. Gatha 196. It is preached by the Jinnah that all the actions of a person who does not know the 3 jewels from the empirical and real points of view are wrong. Gatha 197. An abhavya jiv, even if he develops faith in the religion, has confidence in it, has a liking for it, and performs it, does all this for the sake of attaining some worldly enjoyment and not for the sake of annihilating his karmas. Gatha 198. An auspicious disposition towards worldly gain secures merit, that is the punya, while an inauspicious disposition towards worldly gain acquires sin, that is papa. But one who remains undisturbed by alien things and enjoys one's own pure nature can put an end to one's misery. Gatha 199. He who aspires for merit, that is worldly well-being, aspires for life in this mundane world. Merit is capable of securing a pleasant state of existence, but it is cessation of merit, punya karma, only that leads to liberation. Gatha 200. Know that an inauspicious karma results in misery, while an auspicious karma in worldly happiness. But how can it be said that auspicious karma results in happiness when it leads to mundane existence? Gatha 201. Just as fetter were made of iron or gold binds a person, similarly karma, whether auspicious, that is the punya karma, or inauspicious, that is the papa karma, binds the soul. Gatha 202. Therefore, do not develop attachment for or association with either of them.
one loses one's freedom by attachment to or association with what is evil. Gatha 203. Thought, though it is better to attain heaven by observing vows and penance than to suffer misery in hell by doing evil. There is great difference between one who stands in shade and the other standing in the sun. Gatha 204. Through merit, that is punya karma, one may attain chakravartihood, that is the supreme kingship, where great honor is bestowed on one by the Vidya Viharas, that is the demigods, gods and men, through praising with folded hands and offering of garlands. But certainly he will not attain the right understanding blessed by a bhavya, that is the soul fit for salvation. Gatha 205. The man of merit, Punyatma, after enjoying his divine status in heaven, at the end of his lifespan will be born as a human being with 10 types of worldly enjoyments. Gatha 206 and 207. After having experienced for the entire life incomparable enjoyments appropriate to human beings, one attains the right understanding that leads to emancipation on account of the religious performances undertaken by one in one's earlier births. Having realized that 4 things, that is human birth, listening to scripture, having faith in scriptures, appropriate practical endeavor are difficult to attain, one observes self-restraint and having annihilated one's past karmas through penance, one becomes forever a soul emancipated. मोक्ष मार्ग सूत्र. गाथा 192. जिन शासन में मार्ग तथा मार्गफल इन 2 प्रकारों से कथन किया गया है. मार्ग मोक्ष मार्ग का उपाय है, उसका फल निर्वाण या मोक्ष है. गाथा 193. जिनेन्द्र देव ने कहा है कि सम्यक यानी के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है. साधुओं को इनका आचरण करना चाहिए. यदि वे स्वाश्रित होते हैं तो इनसे मोक्ष होता है और पराश्रित होते हैं तो बंध होता है. गाथा 194. अज्ञानवश यदि ज्ञानी भी ऐसा मानने लगे कि शुद्ध संप्रयोग अर्थात भक्ति आदि शुभ भाव से दुख मुक्ति होती है, तो वह भी राग का अंश होने से पर समयरत होता है. गाथा 195. जिनेन्द्र देव द्वारा प्ररूपित व्रत, समिति, गुप्ति, शील और तप
का आचरण करते हुए भी अभव्य जीव अज्ञानी और मिथ्या बुद्धि ही है। गाथा 196। जो निश्चय और व्यवहार स्वरूप रत्नत्रय यानी के दर्शन ज्ञान चारित्र्य को नहीं जानता, उसका सब कुछ करना मिथ्या रूप है। यह जिनदेव का उपदेश है। गाथा 197। अभव्य जीव यद्यपि धर्म में श्रद्धा रखता है, उसको प्रतीति करता है, उसमें रुचि रखता है, उसका पालन भी करता है, किंतु यह सब वह धर्म को भोग का निमित्त समझकर करता है, कर्मक्षय का कारण समझकर नहीं करता। गाथा 198। वह नहीं जानता कि परद्रव्य में प्रवृत्त शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है। धर्म अन्यगत अर्थात स्वद्रव्य में प्रवृत्त परिणाम है, यथा समय दुखों को क्षय का कारण होता है। गाथा 199। जो पुण्य की इच्छा करता है वह संसार की ही इच्छा करता है। पुण्य सुगति का हेतु अवश्य है, किंतु निर्वाण तो पुण्य के क्षय से ही होता है। गाथा 200। अशुभ कर्म को कुशील और शुभ कर्म को सुशील जानो, किंतु उसे सुशील कैसे कहा जा सकता है जो संसार में प्रविष्ट करता है। गाथा 101। बेड़ी सोने की हो चाहे लोहे की, पुरुष को दोनों ही बेड़ियां बांधती है। इसी प्रकार जीव को उसके शुभ अशुभ कर्म बांधते हैं। गाथा 202। अतः परमार्थतः दोनों ही प्रकार के कर्मों को कुशल जानकर उसमें साथ न राग करना चाहिए और न उसका संसर्ग, क्योंकि कुशल कर्मों के प्रति राग और संसर्ग करने से स्वाधीनता नष्ट होती है। गाथा 203। तथापि व्रत व तपादि के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति उत्तम है। उनके न करने पर नरकादि के दुख उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि कष्ट सहते हुए धूप में खड़े रहने की अपेक्षा छाया में खड़ा रहना कहीं अच्छा है। इसी न्याय से लोक में पुण्य की सर्वथा अपेक्षा उचित नहीं। गाथा 204। इसमें संदेह नहीं कि शुभ भाव से विद्याधरों देवों तथा मनुष्यों की करांजलि बद्ध स्तुतियों में स्तुत्य चक्रवर्ती सम्राट की विपुल राज लक्ष्मी तक उपलब्ध हो सकती है, किंतु भव्य जीवों के द्वारा आदरणीय सम्यक संबोधि प्राप्त नहीं होती है। गाथा 205। पुण्य के प्रताप से देवलोक में यथास्थान रहकर आयुक्षय होने पर देवगण वहां से लौटकर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। वहां से दशांग भोग सामग्री से युक्त होते हैं। गाथा 206 एंड 207। जीवन पर्यंत अनुपम मानवीय भोगों को भोगकर पूर्व जन्म में विशुद्ध समीचीन
धर्माराधन के कारण निर्मल बोधि का अनुभव करते हैं और चारों अंगों मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा तथा वीर्य को दुर्लभ जानकर वे संयम धर्म स्वीकार करते हैं और फिर तपश्चर्या में कर्मों का नाश करके शाश्वत सिद्धपद को प्राप्त होते हैं। मोक्ष मार्ग सूत्र संस्कृत रेंडरिंग। मार्गः मार्गफलम् इति च द्विविधं जिनशासने समाख्यातं मार्गं खलु सम्यक्त्वं मार्गफलं भवति निर्वाणम्। श्लोक 193। दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इति सेवितव्यानि साधुभिरदं भाणितं तैरतु बंधो या मोक्षो या। श्लोक 194। अज्ञानात् ज्ञानी यदि मन्यते शुद्ध संप्रयोगात् भवतीति दुःखमोक्षः परसमयरतो भवति जीवः। गाथा 195। व्रत समिति गुप्ति शील तपः जिनवरे प्रज्ञप्तं कुर्वन् अपि अभव्यः अज्ञानी मिथ्या दृष्टिस्तु। गाथा 196। निश्चय व्यवहार रूपं यो रत्नत्रयं न जानति सः यत् करोति तन्मिथ्यात्वरूपम् सर्वं जिनोदिष्टम्। गाथा 197। श्रद्धाति च प्रत्येति च रोचयति च तथा पुनश्च स्पृशति धर्मं भोगनिमित्तं न तु सकर्मक्षयनिमित्तम्। गाथा 198। शुभ परिणामः पुण्यम् अशुभः पापमिति भणितमन्येषु परिणामो ज्ञानगतो दुःखक्षयकारणं समये। गाथा 199। पुण्यमपि यः समिच्छति संसारतेन इहितः भवति पुण्यं सुगति हेतुः पुण्यक्षयेन एवं निर्वाणम्। गाथा 200। कर्मं अशुभं कुशल शुभकर्मं चापि जानीहि वा सुशीलं कथं तद्भवति सुशीलं यत् संसारं प्रवेशयति। गाथा 121। सौवर्णिकमपि निगलं बध्नाति काल समापि यथा पुरुषं बध्नात्येवं जीवं शुभं अशुभं वा कृतं कर्म। गाथा 202।
तस्मात्स्तु कुशलैश्च रागं मा कुरुत मा वा संसर्गम् स्वाधीनो हि विनाशः कुशल संसर्गरागेण। गाथा 203। वरं प्रततपोऽपि स्वर्गः मा दुःखं भवतु निरये इतरेः छाया तपस्थितानां प्रतिपालयतां गुरुभेदः। गाथा 204। च रामानुजकराञ्जलिं मालानिश्च सस्तुता विपुला चक्रराजलक्ष्मी लभ्यते बोधिः न भव्यनुता। गाथा 205। उवेन्ति मां तत्र स्थिवा यथा स्थानं यथा आयुक्षये च्युतः उपयान्ति मानुषी योनिं सदशांगोऽभिजायते। गाथा 206 and 207। भुक्ता मानुष्कान् भोगान् अप्रतिरूपान् यथायुष्कम् पूर्वं विशुद्ध सद्धर्मा केवलं बोधिबुद्धत्वा चतुरंगं दुर्लभं ज्ञात्वा संयमं प्रतिपक्ष तपसां धूतकर्मांशः सिद्धो भवति शाश्वतः।